we are going to have the panel discussion. We are going to start with the agenda Tri-City as a growth corridor. So I would like to call upon our panelists one by one. Before that, I request a moderator of the panel discussion to join us on stage. Let's have Mr. Prabnoor Singh, Managing Partner at JP Singh and Company. एक बड़ी जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए. It's an honor to welcome a young yet highly accomplished leader of the Tri-City real estate landscape, Mr. Prabnoor Singh, Managing Partner at JP Singh and Company, a legacy-led real estate firm with over 25 years of trusted experience. Known for being very active and engaging on social media platforms, Prabnoor shares clear insights, timely market updates, and a modern outlook that today's buyers connect with. He proudly carries forward his family's legacy, and he himself has a 10 years of experience in Tri-City growing real estate story. Thank you so much, sir, for joining us here. So now we have a panelist coming up on stage. We have the first panelist as Mr. Sunil Bansal, Partner SLPB SkyTouch. Today's premium home buyers seek more than a home. They seek a complete lifestyle. सुनील जी की जगह पर we have Mr. Abhishek, the MD SkyTouch. एक बड़ी जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए. Thank you so much, sir, for joining us here. With evolving expectations of smart automation, flexible spaces, and community-centric amenities, modern living now blends comfort, convenience, and sophistication. SkyTouch Towers, Peer Mashallah, embodies this new standard with spacious 4 and 5 BHK homes, panoramic views, and wellness-focused design. So thank you so much, sir, for joining us on the behalf of Mr. Sunil Bansal. Next we have Mr. Deepak, Managing Director at Atlantis. किसी वजह से वो भी नहीं आ पाए, but उनके behalf पर I would like to request Mr. Vishwas Chadda. Can we have a huge round of applause for him as well? Thank you so much, sir, for joining us here. Atlantis envisions communities where architecture aligns with modern aspirations. With a commitment to innovation, sustainability, and quality, they create environments that inspire elevated living. Every project reflects thoughtful design and future-ready thinking. Their journey is one of the transforming possibilities into exceptional realities. Third, we have Mr. Ashish Arora, Managing Director at Hermitage Group. Can we welcome him with a huge round of applause, everyone? Mr. Ashish Arora, Managing Director at Hermitage Group, brings a well-rounded background in banking, interior design and real estate. After 7 years in banking and 6 years in interior decor, he entered the real estate in 2019. With a focus on thoughtful design, financial discipline, he has delivered 2 successful projects, continues to lead 2 more with precision and vision. His leadership reflects a commitment of sustainable development and meaningful community living. So next we have Mr. Nitin Bhattacharya, Deputy General Manager Sales at Ryzionic. Everyone, एक बड़ी जोरदार तालियां हो जाएं सर के लिए भी. Mr. Bhattacharya. Thank you so much, sir, for joining us here. A decade ago, they entered Tri-City with no network, only ambition and determination. Today, they bring innovation, fresh thinking, and personalized marketing into the city's real estate landscape, backed by a strong understanding of consumer behavior and market trends.
Creativity also fuels their interest beyond work, including a passion for singing. At Trisonic, they now lead New Chandigarh's tallest skyscraper, featuring luxury terrace homes just 2 kilometers from the International Cricket Stadium. Thank you so much, sir, for joining us here. Last but not the least, in the panel discussion of Tri-City as a growth corridor, we have Mr. Sanjeev Thakur, founder and managing director at Thick Rise. Everyone, can we have a huge round of applause for the founder and managing director at Majestic Rise, Mr. Sanjeev Thakur. Mr. Sanjeev Thakur brings over a decade of proven expertise in driving high-impact real estate sales across the Tri-City region. His strategic leadership has delivered record-breaking launches and sold-out success for landmark projects like Imperial Heights, Gilco Park Hills, Mohali Times Square, and F Tower. Known for his transparency and deep market understanding, strong industry relations, he has built a trusted sales ecosystem. His vision continues to propel Majestic Rise towards new milestones of growth and excellence. So now, without further ado, I request Mr. Prabnu to please take over and carry forward the discussion. Thank you so much. So today is the evening where we are too much honored to welcome the topmost builders of Tri-City among us. And in the next few minutes, we will leave to some real estate insights that will help us to know how to invest in real estate safely. So good evening everyone, I am Prabnoor Singh, and being myself a real estate enthusiast, I have seen a tremendous growth in this field in past 10 years. So let's begin with some real insights of Tri-City's real estate market with Mr. Abhishek. Hi, good evening. So I would like to ask my first question from Mr. Abhishek. Sir, how is architectural design evolving to meet the lifestyle aspirations of new age home buyers in premium projects? Good evening, everyone. So, I think premium home buyers in the luxury segment today are looking more than just four walls and a convenient address, right? People aspire that their homes bring out the true luxury lifestyle experience. Smart homes, home automations, climate control, security, all these things for luxury home buyers are basic standards. People think कि ये सब amenities and ये सब comfort हमारे luxury at least the segment in which these buyers look, ये चीजें होनी चाहिए. And people also want access to very thoughtful outdoor spaces, whether it be clubhouses, yoga decks, jogging tracks, which bring out both comfort, relaxation as well as interaction at the same point of time, right? And I think उसी need को समझते हुए, उसी segment को समझते हुए, the project that we are doing, Sky Touch, which is a 4 and 5 BHK residency, basically it caters to those particular needs. एक luxury lifestyle experience हो, आपके पास एक luxury amenities हो, outdoor spaces हो. So basically the project position itself as a very ideal solution to those who are looking for both comfort as well as a contemporary sophistication on that point, right? And I think ये जो सारे changes like premium home buyer आज एक ढूंढ रहा है कि every builder the buyer wants that every builder brings out something unique in their project that they are looking forward to. Exactly. Yeah. So like sir, I appraise your answer, and even when we talk about architectural designs, all the outlooks and interior looks also matters a lot in the projects. Absolutely. I think एक बार आर्किटेक्चर से कॉमन मैन की थॉट यही होती है कि आउटडोर्स अच्छा होना चाहिए, इंटीरियर्स अच्छा होना चाहिए. बट आई थिंक नाउ होम्स आर नॉट जस्ट द वे वी लुक एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? वो एक एक्सपीरियंस है, आप कैसे रह रहे हो. नाउ वर्क फ्रॉम होम इज बिकमिंग अ ट्रेंड, राइट? सो पीपल वांट दैट देयर होम्स डू हैव स्पेसेस जहाँ कोलैबोरेट वर्क कर सकें, वो अपने होम में एक पर्टिकुलर एरिया बना सकें वेयर work from home can become easier with the rising trend in those particular categories. Exactly, sir. Great insight. So I would like to know one more thing from you. How important is natural light in any project? Achha.
I think natural light, sunlight, airy spaces, ये एक ऐसा पैरामीटर है. आई थिंक लोग इंटीरियर्स देखते हैं, एक्सटीरियर्स देखते हैं, बट ये नहीं समझ पाते कि एक खुला और एक हवादार हाउस एंड मकान कितना इंपॉर्टेंट है. लोग वास्तु को सोचते हैं. आई थिंक वास्तु में पीपल का एक लिमिटेड दायरा हो जाता है. दे थिंक कि साउथ डायरेक्शन नहीं लेनी, वी वांट ईस्ट डायरेक्शन और इधर नॉर्थ डायरेक्शन, राइट. बट एक बेसिक वास्तु कंसेप्ट, इफ यू गो इनटू वेरी डीप, इज कि एक घर में जहां लाइटिंग एंड एयरीनेस नहीं है, आई डोंट थिंक वो वेदर इट इज नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन डू मैटर. अगर आपके घर पे अच्छी सनलाइट नहीं आ रही, अच्छी एयरीनेस या ओपननेस नहीं है, ओपन स्पेसेस नहीं है, तो आई डोंट थिंक वास्तु हैज अ मीनिंग देयर. सो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स. Exactly, sir. Very well said, and I really appreciate your thoughts, sir. थैंक यू सो मच. So, I would like to ask my next question from Mr. Vishwas Chadha. Sir, social media has become a powerful tool in real estate, from influencer-led marketing to digital project promotions. How much impact do you think it truly has on buyers' decision today? सत श्रीकाल सब लोग. ये क्वेश्चन वैसे आपको बहुत सूट करता है क्योंकि आप खुद भी एक इन्फ्लुएंसर ही हो. Exactly. अच्छा, इसका आंसर बड़ा सिंपल है. आप बॉलीवुड देखते हो, पिक्चरें देखते हो. बिल्कुल. जब 1990-95 का दौर था, जहाँ पर यश चोपड़ा का कैमरा जाता था, जिस फेस के ऊपर कैमरा जाता था, वो बंदा हीरो होता था, क्योंकि तब कैमरा एक था. बिल्कुल. यह कैमरा 5 थे गिनती के पूरी दुनिया के अंदर. आज सबके पास मोबाइल है, सबके पास कैमरा है, सबके पास इंफॉर्मेशन है. बिल्कुल. सोशल मीडिया टूल तो है ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो कैमरा, वो हीरो, वो सब है. आप अपना पेज प्रमोट करते हो, हम अपना पेज प्रमोट करते हैं. बिल्कुल, exactly. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेलिंग अबाउट अवरसेल्फ. आज इन्होंने कॉन्क्लेव किया, इन्होंने हमें बुलाया, इन्होंने हमें बोलने का मौका दिया, हम अपने बारे में बता रहे हैं. ये हमारे जरिए शायद 1000, 10,000 लोगों को बताएंगे. आपके देश पे आएंगे शायद हम 1 लाख लोगों को बताएंगे. जब तक हम बताएंगे नहीं, तब तक प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा? मैंने कह दिया हमारा प्रोडक्ट लग्जरी है, मैंने कह दिया मेरे प्रोडक्ट में सनलाइट है. कैसे? कोई प्रूफ, कोई और बोलेगा, कोई और दिखाएगा, तभी पता लगेगा. एंड देन एवरीवन इज बिजी. आप भी अपने ऑफिस के 10 बजे, आप 6-7 बजे तक सारे बिजी हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो. कैसे पता लगेगा? अगर घर बैठे बैठे यूट्यूब पे मैं टाइप कर दूं और पता लग जाए, तो उससे बड़ी चीज पे. अगेन सोशल मीडिया, यू आर वन ऑफ द एग्जाम्पल, वी आर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. सो सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट है ही. थैंक यू. एग्जैक्टली सर. एंड जैसे कि अब सोशल मीडिया में तो अब कोई भी अगर अपने प्रोजेक्ट की बात करेगा तो प्रेज ही करेगा. प्रेजल मेरा नहीं होना चाहिए, प्रेजल आपका होना चाहिए. अगर समवन इज कमिंग, प्रभनुर इज कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट माय प्रोजेक्ट, कि ये प्रोजेक्ट अटलांटिस लेके आ रहा है, इसके डायरेक्टर्स ये हैं, इनका विजन ये है. कंपनी तो कह ही रही है, बट कंपनी को काउंटरफिट या काउंटर अप्रूवल जो मिलती है वो सोशल मीडिया से ही मिलती है. तो आप ये इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जैसे सोशल मीडिया में अब कई बार लोग कहते हैं कि दिखता कुछ है, होता कुछ है, तो इस चीज को बायर कैसे वेरीफाई कर सकता है कि जो भी प्रोमिसेस सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं कि वो एग्जैक्टली वैसे ही रहे जब फ्यूचर में पोजीशन में डिलीवर हुए? सर, सोशल मीडिया के ना 2 प्लेटफॉर्म्स हैं. एक है हम सबका, बिल्डर्स का. ठीक है. एक है जो चैनल है, जो बिजनेस पार्टनर है उसका. राइट. बिल्डर कुछ भी कहते, चैनल पार्टनर जब तक उसको प्रूव नहीं करता. एट एंड ट्रस्ट मैंने आपको दिया, आपने अपने क्लाइंट को दिया. एट एंड ट्रस्ट आपका 70% है, मेरा 30% है उस क्लाइंट के ऊपर. तो आप अपने क्लाइंट को चीज दे रहे हो, तो आप वही चीज दोगे जिसपे आपका ट्रस्ट बनता है. क्योंकि माइट भी वो क्लाइंट आपका मामा है, ताया, रिश्तेदार है, कोई कजन है, कोई बुआ का लड़का है. एट एंड ट्रस्ट 70% आपका, 30 मेरा. जब तक आप उस सोशल मीडिया को आप नहीं प्रूव कर रहे हो, तब तक वो 30% कुछ नहीं. आपका 70% माइलेज है, हमारा शायद 30% है. 10% अगेन वेरीज अपॉन द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट. सो इट्स वेरी सिंपल. जो प्रोडक्ट है वो हमारा है, पर विजन और आइडियोलॉजी आपकी है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं. राइट. सो एज पर सर, जो भी कोई सोशल मीडिया से हम प्रमोशंस देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, बहुत अच्छा है, उसको सुनो, समझो, लेकिन उसे एक अपने लेवल पर वेरीफाई भी करो. कोशिश करो कि आप एक अच्छी इंफॉर्मेशन उसमें से निकाल पाओ बिफोर इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी. राइट. और अगर प्रभनूर के कोई बंदा पेज पे है तो बंदा ठीक है, हम ये भी कंज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हम भी इसकी वीडियो देखते हैं. क्या बात है सर, कमाल है, कमाल है सर. सो I would like to ask my next question from Mr. Ashish Arora ji. Sir, what impacts customer satisfaction the most? Pricing, construction quality, location, or delivery?
फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले कस्टमर का जो मेन फोकस रहता है वो डिपेंड करता है 3 P के ऊपर। फर्स्ट P उसका प्लेस, सेकंड प्राइस एंड थर्ड प्लेसमेंट। जितना को हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर लास्ट 5 ईयर में देखा है, कस्टमर का सबसे पहले यही होता है कि मेरे को क्वालिटी कहाँ मिलेगी, प्राइस, मेरा बजट कहाँ का होगा। क्योंकि जब हम रेजिडेंशियल की बात करते हैं, एंड ऑफ द डे हमारे पास एंड यूज़र कस्टमर होता है, जिस कस्टमर ने अपना लोन लेना है प्लस अपनी सेल्फ फंडिंग को यूज़ करना है और अपना सपनों का घर लेना है। तो उसके लिए कस्टमर का सबसे पहले माइंड में ये होता है कि ऐसा कौन सा बिल्डर है जो हमें टाइमली पोजीशन दे सकता है, क्वालिटी ऑफ वर्क दे सकता है। क्वालिटी ऑफ वर्क कहाँ चेक होता है? जब वो कंस्ट्रक्शन को चेक करता है। प्लस वो ये देखता है कि कौन सा एरिया मेरे को सूट करेगा जो मेरी लोकेशन को। लेट्स से अगर हम बात करें ट्राई सिटी की, ट्राई सिटी के अंदर जीरकपुर, मोहाली, खरड़, कुराली, ये सारे एरिया आते हैं। अब जिस पर्सन को हिमाचल का है तो उसको ऑब्वियस है कि जीरकपुर सूट करेगा, तो पहली उसके माइंड में ये होगा कि मेरे को ऐसा प्लेस लेना है जो मेरे घर के पास हो। घर के पास का मतलब जो डिस्टेंस मेरे कवर करे। उसके बाद उसका बजट, अगर हम बात करें जीरकपुर की या खरड़, कुराली या मोहाली, तो कस्टमर 3 तरह में डिफाइन है। जो कस्टमर अपने बजट में जाता है वो जीरकपुर में प्रेफर करता है, जिसको थोड़ा 2 CR से हाई जाना है वो अपना मोहाली को प्रेफर करता है। फिर वो देखता है कि बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, बिल्डर ने क्या डिलीवर किया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि आज की डेट में प्रोजेक्ट को डिलीवर करना इज अ मोस्ट टफेस्ट जॉब। कस्टमर की सेटिस्फैक्शन करना सबसे बड़ा चैलेंज है आज बिल्डर के लिए। क्यों? क्लाइंट को हर तरह का अपनी एमिनिटीज, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने आसपास का माहौल, हर चीज़ अच्छी चाहिए। तो क्लाइंट को अगर हमने सेटिस्फाइड करना है प्राइस को लेके, क्योंकि आज की डेट में क्लाइंट बहुत अवेयर है, बहुत एजुकेटेड है। क्लाइंट को पता है कि पहले आज से 10 साल पहले क्या ब्रांड्स लगते थे, आज के डेट में क्या ब्रांड्स हम यूज़ कर रहे हैं, एंड प्लस हम ये सोच रहे हैं कि उनका बजट कौन कैसे बीट कर पाए। होता क्या है कि जो भी इंसान आज में मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जब भी कोई फ्लैट बाय करता है सबसे पहले अपनी पॉकेट को देखता है कि मेरा प्राइस और मेरे को क्वालिटी ऑफ घर और आने वाले टाइम में मेरे बच्चों के लिए जो बोला गया वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें कस्टमर के लिए बहुत मैटर करती हैं। हम लास्ट 5 ईयर में हमने प्रोजेक्ट के अंदर लोगों को घर भी दिया है, लोगों को सेटिस्फाइड भी किया है, वहाँ पर लोग रह भी रहे हैं, लेकिन उनसे सीख के पता लगा है कि कस्टमर की नीड क्या है। कई बार क्या होता है, कस्टमर सोचता है कि आपका घर लेट हो गया 1-2 महीने 3 महीने, लेकिन अगर क्लाइंट को टाइमली उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क मिल जाए, जो हमने कमिटमेंट किया है, अगर हम उस पर खरे उतर जाएं तो क्लाइंट के लिए वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। तो मेरे हिसाब से क्लाइंट को सेटिस्फाइड करने के लिए सबसे पहले हमें क्वालिटी, जो हमने उनसे वादे किए हैं वो पूरे होने चाहिए और जो हमने उनको सपना दिखाया है वो क्लियर होना चाहिए। सर, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में बताया, अब चलो आप समझ सकते हो कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अपने आप में कोई चीज़ है, बट जो परचेजर है, जो बायर है, वो कैसे वेरीफाई कर सकता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप वो मीट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे मैं हो? आपको भी बताता हूँ। होता क्या है कि जब भी हम आज की डेट में सब बिल्डर्स सैंपल फ्लैट बनाते हैं, सैंपल फ्लैट के अंदर हमने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं कि हमने टाइल्स XYZ कंपनी का लगाया है, हमने डोर फ्रेम इस कंपनी का लगाया है, CP फिटिंग इस कंपनी का है, हार्डवेयर इस कंपनी का है, किचन इस कंपनी का है, अलमीराज इस कंपनी की है, UPVC इस कंपनी की है। तो क्लाइंट उस चीज़ को नोट करता है। आज की डेट में क्लाइंट जो है, मैक्सिमम क्लाइंट जो है, अगर रेजिडेंशियल की बात करें तो हमेशा वो सैलरी क्लास ही मिलेगा। क्योंकि सैलरी क्लास जो रेंट पे रह रहा है उसका ये ड्रीम होता है कि जितना मैं रेंट दे रहा हूँ या मैं अपनी EMI क्यों ना पे करूँ, तो उस हिसाब से वो उस प्रोडक्ट को देखता है, अपने बजट को देखता है, फिर वो क्वालिटी को चेक करता है कि जो बिल्डर ने अपने सैंपल में लगाया है क्या हमें वो प्रोवाइड किया है। तो वो चीज़ें उससे क्लियर हो जाती हैं। जो ब्रांड है कस्टमर को पता होता है कि हमें क्या दिखाया गया था, क्या मिला था। तो मैं फिर बोलूँ, आज की डेट में कस्टमर बहुत नॉलेजेबल वाला है। आज की डेट में कस्टमर को आप ये नहीं कह सकते कि ये दिखाया था तो ये लग गया। एग्जैक्टली। तो सर, जैसे अब आजकल, आज से कुछ टाइम पहले तक हम कहते थे कि फ्लैट्स में लोग तब मूव करते हैं जब वो बजटेड हो, बट आज का टाइम आ गया, पेंट हाउसेस बन रहे हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स बन रहे हैं, 4 BHK 5 BHK। तो पेंट हाउसेस के ऊपर आपका क्या कमेंट है कि कौन से सेगमेंट के लोग हैं जो ये प्रेफर कर रहे हैं? देखिए बुबूर जी, ऐसा है कि
जो हमारे ट्राई सिटी के पास, चाहे हरियाणा है, हिमाचल है, पंजाब है, JNK है, उत्तराखंड है, या राजस्थान का कुछ पार्ट जो इस एरिया को कैटर करता है, ट्राई सिटी को। पहले क्या था कि पहले लोगों के माइंड में था कि हमें अपनी ज़मीन से प्यार है, हमें घर होना चाहिए, ऊपर अपनी छत होनी चाहिए। तो वो लोग आज भी कहीं ना कहीं फ्लैट से डरते हैं। अगर हम बात करें जिनकी एज 70 ईयर 80 ईयर है, जो पुराने गांव में रहते हैं या पुराने शहरों में रहते हैं, वो फ्लैट्स में कंफर्टेबल नहीं होते। तो जैसे अभी आपने पेंट हाउस की बात करी, तो कहीं ना कहीं पेंट हाउस एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको कोठी की फील देती है कि ये रहता है कि हमारा घर भी बड़ा हो गया, हमें टेरिस भी मिल गया, ग्रीन एरिया भी हो गया। तो लोगों की डिमांड, फिर अगेन वही बात है कि बजट। अगर हम पेंट हाउस लेने चले जाएं आज की डेट में, तो मेरे को नहीं लगता कि 2.5 या 3 CR से मिनिमम कहीं पेंट हाउस मिलता है। मेरे को नहीं लगता कि इस नहीं range मिलता में है, मिलता है। नहीं मिलता। लाइक मोहाली में तो हम पेंट हाउस की बात करते हैं तो इट गोज अराउंड आई फील लाइक 5 6 7 समवेयर, जो कि आज से कुछ टाइम पहले तक सुनने में भी बड़ा और लगता था अगर हम Yes. बिफोर कोविड चले जाए। तो कोविड से बाद से आपको क्या चेंजेस लगे हैं रियल एस्टेट मार्केट सर, में? हाँ, कोविड के बाद, जैसे मैं आपको बताऊं कि कोविड के बाद जैसे आज की डेट में एंड यूजर है, बैंक का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर। जैसे आज की डेट में हमारी ROI है, क्लाइंट्स के लिए कोविड के बाद ये लगा कि एक सोसाइटी के अंदर हम सेफ हैं। आज अगर हमें कोठी में रह रहे हैं तो हमें वो 40 दिन 50 दिन या 60 दिन जो भी कोविड रहा है, उस दिनों में हमें उसी एरिया को यूज़ करना पड़ा है। लेकिन मैं आज भी खुद सोसाइटी में रहता हूँ। तो सोसाइटी में क्या होता है कि आपको एक तो ये रहता है कि आस पड़ोस आपके आसपास है, आप वॉक कर सकते हैं, आप ग्रीन एरिया को एंजॉय कर सकते हैं। आपके अगर कुछ अलाउ करते हैं तो आपके किड्स नीचे जाके खेल सकते हैं। एक गेटेड सोसाइटी है, अंदर ही आपको वेजिटेबल या फ्रूट्स के अंदर ही आपको अरेंजमेंट हो जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि फ्लैट के अंदर आपको एक ही लोग लगाना है, फ्लैट के अंदर एक ही लोग लगाना है अगर कहीं बाहर जाना है। एग्जैक्टली। आप समझ सकते हैं ना, सिर्फ एक ही बिल्कुल। लोग, बाकी आपका सारा घर पैक्ड है, आप सेफ हैं, सिक्योरिटी है, आपको किसी चीज की चिंता नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से कोविड के बाद जो रेजिडेंशियल फ्लैट्स है उसमें बहुत बूम आया है। ट्राई सिटी के अंदर जो लोग पहले फ्लैट्स की तरफ नहीं देखते थे, अब वो लोग फ्लैट्स की तरफ ट्रेंड चेंज हुआ है। ये हमने आने वाले 3-4 साल में देखा भी है कि लोग कहते हैं नहीं यार, अब हम फ्लैट के अंदर रहना ठीक लगता है। मोरोवर लैंड के प्राइसेस भी आई फील लाइक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। बढ़ गए। तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया होगा कि पोजीशंस लोगों को देना जो फ्लैट्स हम पहले बेच रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में ना, जैसे अभी आपने बोला कि लैंड के प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन कहीं ना बैक ऑफ माइंड कस्टमर के ना माइंड में ही रहता है कि नहीं, घर अच्छा भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, पर सस्ता चाहिए। ये सारे बिल्डर चैलेंज फेस करते हैं, सिर्फ मैं नहीं, सब करते हैं। बट आज की डेट में ना जीरापुर में सब मिलता है। 50 लाख का घर भी मिलता है, 70 लाख का भी मिलता है, 1 CR का भी मिलता है, 2 CR का भी मिलता है। बस वही क्वालिटी डिफरेंस Depend on the budget. बताते हो। राइट सर, ग्रेट इनसाइट सर। सो आई वुड लाइक टू मूव टू मिस्टर नितिन भट्टाचार्य जी, वेरी सॉरी सर। हाउ डू यू सी द ट्राई सिटीज रियल एस्टेट मार्केट इवॉल्विंग इन द नेक्स्ट 5 years? Well, hi Prabnur. Well, that's a very thoughtful question, first of all. And my respects to all the esteemed panelists on the stage today. Well, I believe we are looking at a very exciting era moving forward. We are looking at an era where young brigade is taking the move forward. रोटी कपड़ा मकान पहले एक नेसेसिटी होती थी, I think, but today it's more of an aspiration. People are more brand conscious these days, and this is where Tri-City comes into the picture. Nearby cities which are around 100 kilometers arm stretch, they are looking at Tri-City for their better living, better facilities, better amenities. I think all of us, we travel across Patiala, Bhatinda, nearby cities, and we interact with home buyers and aspirational home buyers. And one thing that we see is very basic thing like co-working space. It's a myth in those cities. अभी भी लोगों को पता नहीं है। तो आप सोचें, Tri-City offers plethora of opportunities for those youngsters, and they are actually moving towards this area. And we are talking about 5 years down the line, but I think we should be talking about 25 years run, which I think we are looking at an exponential run moving forward. सो लाइक आज की डेट में मोहाली की रियल एस्टेट मार्केट या ट्राई सिटी की रियल एस्टेट मार्केट को हम
एनसीआर गुड़गांव से कंपेयर कर रहे हैं, तो आपका इसके बारे में क्या कमेंट है कि ये उस लेवल तक फ्यूचर आप देखते हो इसमें? Well, from the standpoint of data, I think real estate ना एक local market है, it's not a global market. हमेशा locally बात होनी चाहिए. Talking very locally, tier 2 and tier 3 cities, speaking from the data standpoint, they are bound to grow more. And by 2035 or probably by 2047 हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बोला था कि by 2047, by 100 years of its independence, we are looking at a house which is today probably around 50 lakh rupees of a price point. It will be worth 3.5 crores. तो आप सोचें कि एक घर जो हमने लिया as our own living apart all our savings, वही 3.5 करोड़ रुपए महंगा है. तो एनीवेयर अक्रॉस ग्लोब, चाहे आप गुड़गांव में ले रहे हैं, चाहे वो ट्राई सिटी ले रहे हैं, रियल एस्टेट हैज ऑलवेज वर्कड आउट वेल. टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट ट्राई सिटी एंड हाउ इट इज ग्रोइंग, वर्ल्ड में हमेशा ये कहा जाता है कि जितनी भी सिटीज़ हैं वो इनहेबिटेबल होती जा रही है, राइट? एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एनसीआर एंड नियर बाई सिटीज़, AQI, we all know that how the air quality index is coming down to. Chandigarh, Tri-City, it's a very habitable city, right? It's an aspirational city for young people like you and me and all of us, right? We want to work here, we want to spend our quality life here. We wish to not just spend our prime time here, but I think we rejoice moving to Kasoli, going to nearby cities, and still finding home when we come back home. So Tri-City is absolutely growing exponentially. That's what my thought is. You are so young and carrying a great knowledge, so this is appreciable. सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, तो एग्जैक्टली आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन किसको कहते हो? क्या आप इससे क्या फर्स्ट थॉट आपके माइंड में क्या आता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो गए? Lovely question again. And मुझे लगता है जब मैं कभी घर देखने गया, I recently bought one house and it's been around 2.5 years that I've been staying here. तो जब मैं घर देखने गया, that is when I understood that what a customer behavior looks like. जब हम जाते हैं तो I would want कि relationship strengthening पे ज़्यादा बात होनी चाहिए. It is not about bricks and mortars in real estate anymore. It is more of an emotion. मैं अपना बड़ा hard earned money next probably 25-30 years I'm going to spend my entire money on that house. बहुत उसके डिटेलिंग से ज़्यादा, उसके फीचर से ज़्यादा, उसके इमोशन से बात होनी चाहिए. मैं क्या चाहता हूँ, who are all in my family, do I have a dog or not, do I have my elderlies to take care of, or is it a nuclear family? So ये लोग सुनना चाहते हैं. It is not just a presentation on spiral anymore. It is more of an emotion, and I think with the young brigade coming on, and आज से 10 साल पहले प्रभु, I think when you and me were in the industry, तब developers का viewpoint बड़ा different था. You agree? Exactly. अब the corporate ethos has enhanced in this sector because aspirational people, aspirational young people are coming into the picture. People are aspiring to work in real estate. Earlier it was not a story. People were looking for engineering background or medical background for that matter. So as a fact of the matter, I think अब human behavior and psychological behavior, customer behavior की तरफ लोग थोड़ा उनका रुझान बढ़ चुका है. So that answers your question, I think. ग्रेट आंसर सर. दो चलो, आप जैसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स लीड कर रहे हो, तो यंग जनरेशन की आप जैसे बात करते हो, तो यंग जनरेशन के लिए आई वुड लाइक यू टू गिव सम एडवाइसेस. Okay. So historically we have seen अभी हमने एक ट्रेंड नोटिस किया कि earlier we used to tackle people who were 45 years of the age who were buying homes. They were the main home buyers. But today that age has drastically dropped down. Today we are talking to 28 to 35-year-old people who are buying homes. I think you and me, people who are young again, they really gel well with those people. They have
the frequency matching to those people. So for the young buyers, I think you're going to spend a lot more money on the real estate that you're finding. कुछ गलतियां करें, कुछ अलग अलग चैनल पार्टनर से मिलें, and rather than looking into products, this is my personal viewpoint, rather than looking into products, I think we should look for experts. This is where the role of channel partners come into the picture. अपने प्रोजेक्ट के बारे में मैंने अच्छा ही बात करना है, आई एम पेड टू डू सो, बट इट्स द चैनल पार्टनर who's at a neutral ground and he talks sense, he understands what your needs are. So again, rather than looking into products and going to products here and there, I think we should endorse more on finding the right experts in the market. Sir, as you told about channel partners, so like how important are channel partners for in your sales, or I may say for the successful project running? How important are channel partners? So it's of the utmost importance. Channel partner is not somebody who is just selling our house. He is the beneficiary of that product. वो पूरा product scratch till, हिंदी में कहते हैं ना, फर्स्ट से अर्श तक उठाता है. तो channel partner is that support, that silent support. And चैनल पार्टनर, मैं ये नहीं बोलूँगा कि चैनल पार्टनर मार्केट ड्राइव करते हैं, बट दे आर नो लेस. चैनल पार्टनर एक प्रोडक्ट का इन्स एंड आउट्स पूरा स्टडी करते हैं, जो जर्नल बायर नहीं करता, बिकॉज देयर क्रेडिबिलिटी इज ऑल्सो ऑन द लाइन. एंड चैनल पार्टनर शुड बी देयर फॉर एनी प्रोजेक्ट्स टू राइज. कोई चैनल पार्टनर जो स्टार्ट टिल एंड है एक प्रोजेक्ट के साथ, it speaks volume about that project also. कि उस डेवलपर ने उसकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करके रखी. He have committed those points जो उन्होंने, क्योंकि बिल्डर, you and me know that बिल्डर के फीचर्स एंड बिल्डर के फ्यूचर में बड़ा अंतर होता है, right? We say something at the start of the project and we end up doing something very different. So this is where channel partner comes into the picture. He takes you by the collar कि नहीं सर आपने ये बोला था, वो आपको अकाउंटेबल ठहराता है. सो आई थिंक चैनल पार्टनर इज ऑफ द utmost importance. Right, sir. Already great insight, sir. It was pleasure talking to you. So Thank you. I would like to ask my next question from Mr. Sanjeev Thakur. Sir, how will upcoming infrastructure, connectivity and regional planning shape the next phase of urban expansion across the Tri-City corridor? We are talking about the infrastructure. Infrastructure plays a big role, in any country, any city, and across the world. अगर हम बात करते हैं दुबई की या सिंगापुर की, so सिंगापुर, दुबई, कहीं भी हम लोग देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड कनेक्टिविटी ये बहुत रोल प्ले करता है. चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाहे हाउसिंग की बात करते हैं. आर मास्टर प्लान वाज डेवलप्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ जुरोंग कंसल्टेंट. दैट्स अगेन सिंगापुर बेस्ड कंपनी. सो व्हेन लास्ट टाइम आई ट्रैवल्ड, जब सिंगापुर विजिट किया मैंने, सो मैं देखा वहाँ पे, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी द कंट्रीब्यूशन बाय जुरोंग कंसल्टेंट इन सिंगापुर. सो वहाँ उसका मतलब इस कंसल्टेंट का नाम हर बिल्डिंग और हर इंफ्रास्ट्रक्चर पे वहाँ पे था, मतलब. सो आई वाज वेरी हैप्पी कि इस कंपनी ने हमारे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट किया था. एंड इट वाज अगेन, आई एम टेलिंग यू, अ बिग कंट्रीब्यूशन फॉर दैट. अगर आज हम देखते हैं हमारे मोहाली की बात करते हैं, या हम लोग जो पेरिफेरल एरिया में डेवलपमेंट चल रही है, इट्स रियली अमेजिंग द वे वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर. हाँ ठीक है, वो डेवलपमेंट में इट टुक टाइम. आज भी अगर अच्छे से उसको हम देखें, जो हमारा मास्टर प्लान है, द प्लानिंग इज अमेजिंग. एंड जैसे जैसे वो इम्प्लीमेंट होती जा रही है हमारे यहाँ पे, चाहे वो इंडस्ट्रियल की बात करें, चाहे हम लोग अपने हाउसिंग की बात करें, the way we are doing it, like the connectivity to New Chandigarh, we are coming up. We recently एक नई connectivity आई है. आप देखेंगे कि मुल्लापुर जाना पहले एक ही ऑप्शन था हमारे पास. अभी जो हम लोग कर रहे हैं, तो अभी एक और कनेक्टिविटी आई है, इससे हमारा और इजी हो गया. सेम वे लाइक वी आर कमिंग अप मोर कनेक्टिविटीज. सो इट्स प्लेइंग अ बिग रोल. सर, लाइक जो फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं,
तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु डोंट हैव इवन एनीथिंग अबाउट रियल एस्टेट इन देयर माइंड्स, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? जो फर्स्ट टाइम बायर है उनके लिए वही जो अभी पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनका कौन सी लोकेशन पे उनको सूटेबल है और कौन सा बिल्डर वो चूज़ कर रहे हैं और उस बिल्डर का क्या बैकग्राउंड है, अभी तक उसने क्या डिलीवर किया है और वो उसके बजट के हिसाब से उसको क्या कहाँ से लोन का फाइनेंशियल्स कहाँ से उसको सपोर्ट मिल रही है. आई थिंक दीज आर द बेसिक थिंग्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट है. एंड अगेन वही कनेक्टिविटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक दीज आर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो एक बायर को देखने चाहिए. Sir, I mean, like, how can he check the authenticity of the builder if he has little knowledge about real estate? हाँ, तो अभी आप देखेंगे कि आज अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वी हैव सो मेनी ब्रांड्स, यू नो, लाइक गुड़गांव, मुंबई, लाइक लोदास, देन DLF, देन यू नो मेनी कंपनीज आर देयर जिनका एक ब्रांड है. लेकिन अगर हम बात करते हैं कि छोटे सेगमेंट की, सो वी डोंट हैव, उसमें अभी क्या है कि ब्रांड्स हैं बट वी नीड टू आइडेंटिफिकेशन सिर्फ उसी बेस पे है जो मैं बात कर रहा हूँ कि उसका क्या बैकग्राउंड है, अभी तक उसने क्या डिलीवर किया है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं. फाइनेंशियल नोट वो चेक नहीं कर सकता बट बिकॉज बायर है, फर्स्ट टाइम बायर है, यू कांट चेक ऑल थिंग्स, बट स्टिल डिलीवरी क्या हुई है, अभी तक कितना डिलीवर कर चुका है, उसका क्या विजन है. तो आई थिंक दैट्स अगेन ब्रांड फॉर अ स्मॉल बायर्स. मतलब अकॉर्डिंग टू यू कि उसका थोड़ा मतलब कि बिल्डर का बैकग्राउंड चेक किया जाए, थोड़ा वेरीफाई किया जाए कि उन्होंने पहले क्या प्रोजेक्ट्स कैसे करे हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्या डिलीवर किया है. फर्स्ट टाइम बायर के पास दैट इज द ओनली ऑप्शन, दैट इज द ओनली ऑप्शन बिकॉज जो बड़े ब्रांड्स हैं दे हैव लेगेसी, यू नो, दे हैव अ हिस्ट्री, बट छोटे बायर को जो फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं तो ही नीड टू नो विद पेशेंस एंड यू नो सम होमवर्क, उसको थोड़ा इस पे वर्किंग करनी पड़ेगी. Like, sir, we always talk about clubhouse, and many builders claim that we are giving 1 lakh square feet clubhouse, 80,000 square feet clubhouse. So, how important is clubhouse in a real estate project? सी क्लब हाउस वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंकली बिकॉज हमारा जो शहर है ये कैटर करता है हिमाचल, रेस्ट ऑफ पंजाब, J&K, और अब बहुत सी मूवमेंट होने लगी है दिल्ली एंड अदर एरिया से. घर सबके पास है, मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, सबके पास घर है वहाँ पे. Right. यहाँ पे घर क्यों ले रहा है वो? फैसिलिटीज़ के लिए. उसके बच्चों को वो चाहता है कि बच्चे स्विमिंग करें, बच्चों में पोटेंशियल है लेकिन फैसिलिटी नहीं मिल रही वहाँ पे. हिमाचल में चाहे रेस्ट ऑफ पंजाब में फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है. तो आज वो मूवमेंट आप मैंने बहुत सा देखा कि ये बठिंडा एरिया जो इस एरिया के बेल्ट के लोग हैं, बहुत से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लोग हैं, वो लोग अपने बच्चों को यहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं बिकॉज उनकी जॉब्स तो हैं वहाँ पे बट स्टिल दे वांट टू मूव हियर. रीज़न ताकि उनको बच्चों को वो फैसिलिटीज़ मिल सके जो डिजर्व, बिकॉज दे हैव ए पोटेंशियल. वी हैव सीन सो मेनी क्रिकेटर्स लाइक रेस्ट ऑफ पंजाब से हैं, आज दे आर परफॉर्मिंग, मतलब आज इंडिया टीम में बहुत अच्छे जो रेस्ट ऑफ पंजाब से आए थे आज वो अच्छा खेल रहे हैं बिकॉज उनको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल गई, वो सब कुछ मिल गया. तो क्लब हाउस अगेन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और छोटी छोटी चीज़ें बहुत, मतलब बेसिक बात करता हूँ, एक बच्चे का मेरे को बर्थडे करना है अगर उस सोसाइटी में रहता है तो उसमें 2 ऑप्शन है, या तो क्लब हाउस के में जहाँ पे 50 से 100 लोगों की गैदरिंग हो सकती है, वहाँ पे वो कैटर बुलाएगा और वो कर लेगा, या कहीं बाहर जाके होटल बुक करेगा और वहाँ का कोई बेसमेंट का या कोई वो बैंक्वेट बुक करेगा और फिर वहाँ पे करेगा. सो क्लब हाउस प्लेज बिग रोल, यू नो. अब जैसे कुछ छोटे छोटे फंक्शन हैं हमारे इंडिया में, हर तीसरे चौथे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन कुछ ना कुछ फंक्शन चलते रहते हैं. सो क्लब हाउस का पर्पज़ क्या है? वहाँ पे गैदरिंग हो जाती है, दे नो ईच अदर एंड किड्स प्ले टुगेदर, उनको पता है कि बचपन क्या है. नहीं तो क्या हो रहा है कि इंडिपेंडेंट हाउसेस में क्या हो रहा है कि हम बच्चे को एक जगह से दूसरा भेजना मुश्किल है आज की डेट में, बट क्लब हाउस में क्या है कि दे प्ले टुगेदर, दे नो ईच अदर, उनको बचपन है दिखता है वहाँ पे. तो आई थिंक क्लब हाउस प्लेज बिग रोल. बिल्कुल सर, आई अप्रिशिएट योर आंसर एंड आई गेस कि ऑडियंस ये ज़रूर जानना चाहेगी जो मैं आपसे अब एक बार पूछने लगा हूँ. जी. जैसे मोहाली में हम कहते हैं कि हाई राइज कल्चर काफ़ी आ रहा है जी. काफ़ी बिल्डर्स आ रहे हैं जी. काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं जी. तो आप क्या मानते हैं कि अपने आप में ये एक दूसरे के साथ क्या कंपटीशन है या फिर
आप इससे मानते हैं कि नहीं ये कंपटीशन नहीं, इससे तो हमारी रियल एस्टेट इकोनॉमी और ग्रो कर रही है? आपके थॉट्स क्या है? ये बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है, ट्रस्ट मी। मतलब द वे ये सारे यंग पैनलिस्ट है, सो वी हैव अ ट्रस्ट मी, वी हैव अ ग्रेट फ्यूचर इन दिस सिटी, बिकॉज आप देख सकते हैं कि स्टेज पे बैठे हैं सारे, सो वी डोंट हैव एनी कंपटीशन, बट हाँ, ये प्लेटफॉर्म मिलते रहेंगे, वी विल हैव अ हेल्दी डिस्कशन। रियली थैंकफुल टू लाइक द ट्रिब्यून, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते रहे और हेल्दी डिस्कशंस होती रहेंगी, और ये कहीं भी कंपटीशन के नहीं है। हाँ, हम लोग लर्न बहुत कर रहे हैं, हम लोग बहुत से, आई हैव सीन लाइक हमारे ही शहर में इंडिया के टॉप वीकन से आर्किटेक्ट हायर किए जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंपनीज को ऑन बोर्ड किया जा रहा है। सो दिस इज नॉट अ competition, this is like we are learning from each other, and if there's a competition, then it's a healthy competition, अगर एक वो कर रहा है तो सेकंड वन कुछ और कर रहा है, मतलब सी healthy competition is always important for a good society and अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए। Sir, I appreciate your answer, as you have been into real estate since long. Yeah, I've been to 30 So, years. right, 30 years is a big span. Yeah. And I would like to know कोई ऐसा इंसिडेंस आपकी लाइफ का जो लाइफ टाइम के लिए एक मेमोरी बन गया रियल एस्टेट फील्ड से रिलेटेड? सी सबसे एक रियल एस्टेट जो भी कर रहा है और एक मतलब एज ए प्रोफेशन कर रहा है, बिकॉज ही इट्स नाउ इंडस्ट्री। पहले रियल एस्टेट मतलब आई एम फ्रॉम द कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, तो व्हेन आई एंटर्ड इनटू रियल एस्टेट, तो सो मेनी पीपल शॉक, मतलब कि नहीं यार रियल एस्टेट नहीं करना। सो बट आज की डेट में आप देखोगे बहुत से प्रोफेशनल लोग यहाँ पे रियल एस्टेट कर रहे हैं। सो आज हमें जो आप बोलते हो कि आपको जो अंदर मतलब जो लगता है कि नहीं यार एक अकम्प्लिशमेंट हुई है, तो हमें जब वो एक एंड यूजर आता है और उसके जब हम उसको पोजेशन देते हैं, बिकॉज उसकी वो ना लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। अगर एक एम्प्लॉय की बात करता हूँ तो वो लोन भी लेता है, लाइफ टाइम सेविंग्स भी निकालता है, और फिर भी कम पड़ जाए तो कभी कभी रिश्तेदारों से पैसे भी लेता है, और उसको जब टाइमली घर मिल जाए और उसको जब वो जो चाहता था उससे थोड़ा सा ऊपर मिल जाए, थोड़ा सा, चाहे वो कुछ भी मिल जाए, जो उसके फैमिली का, बिकॉज घर आज की डेट में बहुत से हमारे इंडिविजुअल ड्रीम्स भी होते हैं, बट घर एक फैमिली का ड्रीम है। तो जब वो उसको वो अचीव करता है ना, उसके जो उस दिन उसको एक जो सेटिस्फेक्शन होती है उस जिस दिन हम पोजेशन देते हैं, तो वो हमें एक नहीं जितनी हम पोजेशन देते हैं वो सब हमें ऐसा लगता है कि नहीं दिस इज अचीवमेंट वी हैव डन। एग्जैक्टली सर, Yeah. वो कहते हैं ना कि बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन लैंड इज Yes. लैंड इटसेल्फ। यस, तो वही चीज आपने बताई है। बिकॉज आर कंट्रीज हमारी कंट्री क्या है कि ठीक है क्लासेस की है, लेकिन मासेस की बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। और हम लोग क्या है कि मासेस को कैटर कर रहे हैं, और वो भी उस चीज़ के साथ जहाँ उसका लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट हो, मतलब पूरे जिंदगी का जो लोन भी लेता है वो 20 साल में चुकाता है वो। तो सर, I would like to thank you very much थैंक यू सो for मच। it. Thank you so much, all the gentlemen, for giving your precious time. It was really worthy talking to you all, and you all have a great deep knowledge about real estate field. Please have a big round of applause for all the panelists.